दिल्ली में नेशनल क्रिश्चियन कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे वो 3 मुद्दों के साथ आए थे। एक है इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस, दूसरा है रिजर्वेशन फॉर दलित क्रिश्चियंस, तीसरा है आदिवासियों पे जो प्रताड़ना की जा रही है। तो सुनते हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ। Our gathering together is to remember those whose rights are being trampled, whether they are being bullied, whether it is being done by force, whether it is being done by large mobs. We are here in solidarity with them. We praise God that the faith that we have and the values that the Holy Bible has taught us, and from the life of the Lord Jesus Christ, these are the values the world wants. There is so much of positivity in what we already have. The joy, the peace, the happiness that surpasses all. That is what the world is after, that is what they want. And that name has to be glorified today, and those qualities need to be brought out. The second thing we are gathering for are our Dalit brothers and sisters. By the virtue of a choice that they make in their faith, they lose their Dalit rights. All the protections, all the benefits that they have been guaranteed under the Constitution, they lose because of their faith. We are here in solidarity for them. My dear churches and brothers and sisters in Ghaziabad, in Noida, in Faridabad, and places surrounding Delhi, and some even inside the national capital today are having to face the opposition of people who do not want this faith to flourish. And therefore we gather together with that. We are not here in any way to make fun of anybody else. We're not here to shame anybody else. We're not here to bring about any sort of insult to any individual government officer or any party, whether in power or in opposition. This is not a political gathering. I want to make that clear. And so please restrain and hold yourself when we celebrate the wonderful life that we have in the Lord Jesus Christ. And we pray for the freedoms that He has guaranteed us under our living Constitution. We will pray for our leaders that God gives them the wisdom to be able to carry this on even further. That is the purpose of the National Christian Convention, and I'm so glad that all of you have gathered here this morning to be able to celebrate this very cause. With that being said, I want my sister Minakshi to please come on stage with us. She has traveled the length and breadth, and she has seen all of these things that are happening here. I want her to be able to share with us this morning as to what she has seen happening in the last 10 years, what her concerns are, and why we together have decided that this is an important time and a place for this meeting. Sister Minakshi, over to you. थैंक यू मिस्टर माइकल। तो मैं आती हूँ कि अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में करीबन 12 साल से एट्रोसिटीज क्रिश्चियंस के ऊपर हो रही हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, करीबन 12 से 13 स्टेट इस परसिक्यूशन से ग्रसित हैं, जहां पर जगह जगह पादरियों को मारा जा रहा है, चर्चों पर हमले हो रहे हैं, बाइबलें हमारी फाड़ी जा रही हैं और धर्म परिवर्तन का नाम हमें दिया जा रहा है। तो साथियों, धर्म परिवर्तन हम करते तो 2.3 हम नहीं होते। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करीब 90% स्कूल हमारे क्रिश्चियन हैं और 90% हॉस्पिटल्स हमारे क्रिश्चियंस हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिखों के बच्चे 95% पढ़ते हैं, ओनली 5% हमारे क्रिश्चियंस के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये धर्म परिवर्तन का इल्जाम हम पर लगाते हैं, तो इससे बढ़िया मौका तो कोई था नहीं हमारे पास कि बच्चे स्कूल में इनके पढ़ने आते हैं, उनको हम ईसाई हमारे जो स्पिरिचुअल वो हम पढ़ाते और सारे बच्चों को ईसाई बना लेते। और हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आते
उनको भी हम ईसाई बना लेते। क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी बच्चे हमारे स्कूलों से पढ़कर निकल रहे हैं, हिंदू है तो वो हिंदू निकल रहे हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम और सिख है तो सिख। तो फिर किस बात का धर्म परिवर्तन? आप ये देखिए, दिल्ली एनसीआर में बहुत दूर स्टेटों में तो हो ही रहा था। अब पिछले 2-3 सालों से दिल्ली एनसीआर में ये हवा फैलती जा रही है। ये जहर जो लोग घोल रहे हैं पूरे आवाम में, वो यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी एंटर हो चुके हैं। अभी गुजरे साल करीबन 6 केसेस गाजियाबाद में और फरीदाबाद में और हरियाणा में, हमारे बिल्कुल लगते हुए एरिया है, हरियाणा में हुए हैं। और अभी लास्ट मंथ का मैं आपको केस बता रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश। एक केस हरियाणा का, रोहतक का, करीबन 15 दिन हुए, लास्ट टू लास्ट संडे का ये मैटर है। वहां पर एक परिवार में बच्चा हुआ तो उसको बुलाया गया, एक पास्टर को, कि आप यहाँ पर दुआ करिए। भाई हर धर्म में होता है। हिंदू लोग अपना नामकरण के लिए बुलाते हैं, मुस्लिम लोग खतना के लिए बुलाते हैं, सिख लोग अपना नाम देने के लिए बुलाते हैं। तो ईसाई लोगों को क्या प्रॉब्लम है बुलाने में? वहां पर हमारे धर्मगुरु को बुलाया गया और जब वो अभी स्टार्ट ही करने जा रहे थे कि 3 आदमी, मैं खुल के कहूंगी इस मंच के माध्यम से, जिन्हों, मेरे पास वीडियो है, किसी को इसका कोई प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 आदमी जो अपने आप को आर्य समाज का ठेकेदार बता रहे थे, वो खड़े होते हैं और पास्टर से कहते हैं कि तू इस बाइबलों को, पूरी बाइबलें और सारे लीफलेट सब जमीन पर फेंक दिए और फेंकने के बाद उनसे कहते हैं पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवा के उससे पास्टर से बाइबल जलवाई। आप ये देखिए, ये कितनी बड़ी एट्रोसिटी है, कितना बड़ा हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है। किस दिल से उस पास्टर ने बाइबलों को जलाया होगा? क्या यही हमारा भारत है? ये वही भारत है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब को माना जाता है, जहां पर हर धर्म की इज्जत की जाती है। तो आज ऐसा क्यों? आज ऐसा क्यों? अभी पीछे एमपी में एक केस हुआ, पास्टर को जेल हो गई और जेल होने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि उनके घर तक को बुलडोज करने का ऑर्डर किया गया। आपने नंस का तो लेटेस्ट किस्सा है, आप लोग जानते हैं नंस का लेटेस्ट किस्सा जो है। तो नंस के साथ भी जो हुआ आप सबने देखा। तो साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हम लोग, एक ईसाई समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत शांति प्रिय समाज है। आप लोगों से निवेदन है, कहीं भी इस तरीके की कोई बात होती है तो आप लोग इकट्ठे होके आए ताकि हम मिलकर इस चीज का सामना कर सके। आज हम लोग इस मंच से ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देने आए हैं और ना ही किसी का स्पेसिफिक नाम लेकर हम यहाँ पर नारा लगाएंगे या कोई अपने स्पीच देंगे। हम यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट से अपनी अपीलें रखने आए हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट वो किसी भी पार्टी की हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने अपनी अपीलें रखने आए, वो हमारा राइट है। हम सिस्टर मंजू से बात करेंगे, वो बताएंगे इस कन्वेंशन में वो क्यों आई हैं और क्या उनका रिप्रेजेंटेशन किसका करना चाहते हैं, दलित क्रिश्चियंस के बारे में बताएंगे। टेल अस व्हाई यू हैव कम हियर एंड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द दलित क्रिश्चियंस। I'm here because of my people. And when I say my people, it is the Dalit Christians. This is a group or the community which consists of 70 to 80% of population in the church, in the society. And therefore, today when we look at our country after 75, 76 years of independence, Dalit Christians are still not being freed. They are still under slavery, they are still under oppression, mainly because of the constitutional rights that are being denied for them, and also the discrimination and untouchability that they practice still by the society and within the church. I think we have gathered here together as a community
one in heart, one in mind, one in soul. For us as citizens of India, we have just one sacred book, and that is the Constitution of India. As Christians, our sacred book, of course, is the Bible. But as citizens, on the 26th of November 1949, our Constituent Assembly, which had many eminent Christians, gave to this country those defining principles, the directives based on justice, liberty, equality and fraternity, unity and integrity, the fact that diversity and pluralism has to be respected, the fact that we are a secular country in which we have been, as citizens of India, are guaranteed our rights and freedoms. As Christians, what is the way ahead? Jesus taught us to love one another. So the first C is compassion. We have to be compassionate. Speakers before me have already spoken about the love of Jesus. Greater love than this has no man, than when a man or a woman lays down his or her life for another. And Jesus died on the cross. Jesus has taught us to love everyone, even those who persecute you. Forgive them, yes, for they do not know what they do. Compassion is the hallmark of every Christian. So let us learn to be compassionate to each other and to every single person in this great and beloved land, whatever the cost, whatever the consequences. But we cannot be compassionate without having courage. Rabindranath Tagore has taught us to be fearless in that famous song, "Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake." We are called to be fearless. Are we, as Christians, fearless? Or are we bothered about being afraid of any systems or whatever that goes against us, goes against our Dalit Christians, our sisters and brothers, goes against our Muslim sisters and brothers, goes against the Jal, Jungle and Jameen of our Adivasi sisters and brothers? Do we have the courage, as Jesus did, to stand up for what is truth or for what is just? Or do we have to play to the gallery, hobnob? Jesus was no diplomat. He took sides for truth. He took sides for justice. Let us not be afraid. The moment we show that we are afraid, we show that we don't believe in Jesus, that we have no guts to stand up for what is right, for what is truth, for what is just in the country. Finally, compassion and courage is not just a one day or just for a convention. It is meant to be always as a Christian. We are called to be committed. Christians have to exercise commitment to everyday witness to the least of their sisters and brothers. So today, as we celebrate our Constitution, as we celebrate our togetherness as Christians, let us ask Jesus, our Lord and Savior, to give us the courage to be even more compassionate, to have the courage to stand up for what is right, what is truth, for what is just, and ultimately to be committed till the very end. Let us stand up unitedly for a greater India. Jai Hind, Jai Isu, thank you very much. तुमने देखा है जब बात बननी होती है तो किस तरह बन जाती है? धरती एक कमान सी तन जाती है और आदमी एक तीर सा छूटता है। मैं भाइयों ये कहना चाहता हूँ कि जब समय आएगा हमारी सब मांगे परेशानियां दूर होंगी, और जब तक समय नहीं आया है तब तक हमको संघर्षरत रहना है, अपना काम करते रहना है। ये बात मैं कहने आया हूँ। कोयला काला होता है, आग में डाला जाता है तो लाल हो जाता है। ये आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो, पर ये आग जलनी चाहिए। हम आज इसके लिए इकट्ठे हुए और मैं रोना नहीं रोऊंगा, समस्या नहीं गिनाऊंगा, कुछ समाधान लेके आया हूं। मैं वो समाधान आपके पास रख के छोड़ के जा रहा हूं, और वो इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि हम इसके ऊपर चिंतन मनन करें, और जितने हमारे पास यहाँ पे लीडरशिप बैठी हुई है इसके ऊपर दूसरा कदम उठाने का प्रयास करें। मैं ऐसे कितने ही
मीटिंग्स में जा चुका हूं, पर अभी तक हम लोग कन्वेंशन टाइप की मीटिंग करके खत्म हो जाते हैं, अपने घर में वापस चले जाते हैं. तो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस स्ट्यूपर. वी हैव टू टेक द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग आवर फ्रीडम. ये मकसद लेकर के मैं आपके पास खड़ा हुआ हूं. मैं अपनी बात चालू करता हूं फॉल्स नैरेटिव से. अगर मैं आपको बोलूं हिंदुस्तान को आजादी बाइबल में दिलाई थी और महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई थी, तो आप सब मेरे को जूते मारोगे कि नहीं? पर सच्चाई यही है, यही सच्चाई है. आप दो लाइन में बात करके खत्म करता हूं इस बात को कि अगर विशाल मंगलवादी जी की आप बात सुने या किताब पढ़े तो 1833 में ऑलरेडी बिब्लिकल वैल्यूज के ऊपर भारत को आजादी देने की बात हो चुकी थी. इट वाज अ रेजोल्यूशन. उसके 1869 में 36 साल के बाद महात्मा गांधी पैदा हुए थे. तो जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग फॉल्स नैरेटिव की चपेट में आते हैं. जो घुटी हमको पिलाई जाती है वही घुटी पी पी के हम अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं. इधर से हमको बाहर निकलना है. ये मैंने सेक्युलर साइड के लिए अपने देश से बोली और यही हाल हमारे चर्च का है. हम भी आज एक फॉल्स नैरेटिव के परिभाषा में जी रहे हैं, एक झूठी मानसिकता को लेके जी रहे हैं. मैं सीधी सीधी बात करता हूं, वो भी दो लाइन में करता हूं कि जब भी कोई परेशानी होती है, कुछ होती है, मेरे पास सिर्फ मैसेज आते हैं वी आर प्रेइंग, वी आर प्रेइंग, वी आर प्रेइंग. प्रेइंग आप नहीं कर रहे हो, आप लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हो. तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस नैरेटिव. दिस इज अ फॉल्स नैरेटिव जो हमको बिब्लिकल वैल्यूज से दूर लेके चली गई है. बिब्लिकल वैल्यूज में जहां से पुरोहित, जहां से अपोस्टल्स, नेहमिया को देखो, ही फॉट. गोलियत के पास वो आया, दाऊद आया, तो क्या बैठ करके उसने प्रार्थना की घुटना टेक के कि उसने अपना काम किया, गोफन चलाया? आज आपको भी गोफन चलाना है, इकट्ठा होना है. सो वी हैव टू डेवलप दिस फीलिंग of falling for false narratives. ये false narratives biblically हमको establish करनी है. We have to fight for our rights. दूसरी बात, मैं कहीं भी जाता हूँ सबको यही बोलते हैं कि there is no unity, there is no unity, there is no unity. यहाँ भी यही मैं अभी सुन रहा हूँ, सुबह से मेरे भी कान पक गए हैं. मैं एक बात कह के जाता हूँ इस बात को, जब भी सरकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल होता है, I am an industrialist, I know very well. There is, whenever a project fails, there is one root cause analysis. Immediately it comes into play. उसको एकदम देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार फेल क्यों हुआ. आज हमारी यूनिटी फेल हुई है, तो क्या हमने कोई रूट कॉज एनालिसिस की बात करी है? मैं गुजारिश करता हूं जितने सीनियर्स लोग हैं यहाँ पे, रूट कॉज एनालिसिस फॉर फेलियर ऑफ यूनिटी, और उसमें हम क्या कर सकते हैं इस ओर ध्यान दें. कुछ उस किस्म से अपने समाज का को दिशा बदले उसकी, तब कोई मतलब निकलेगा. एक मजे की बात बताता हूं, छत्तीसगढ़ से आता हूं. छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक लाया गया. बोलते तो फ्रीडम है, फ्रीडम टू रिलीजन एक्ट, और हमको बोलते तुमको मारपीट के घर में रखेंगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बट वी हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एनीवे. तो 2006 में ये विधेयक आया. छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने उसको भीड़ करके 25,000 लोगों से हमने किया, प्रदर्शन किया, और वो फेल हो गया. और आज तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक नहीं लगा है. आपको दूसरी इंटरेस्टिंग बात उसका धर्मांतरण विधेयक ये बता रहा हूं कि 2006 में जब धर्मांतरण विधेयक आया, तब उस वक्त पूरी बीजेपी ने उसके पक्ष में वोट किया और कांग्रेस ने उसके विपक्ष में वोट किया. 2021 में फिर ये धर्मांतरण विधेयक लाया गया. धर्मांतरण विधेयक कांग्रेस लेके आई. उस वक्त धर्मांतरण विधेयक को लगाने के लिए कांग्रेस ने वोट किया और बीजेपी ने उसका विरोध किया. तो आप किस जगह पे हो, आप अपने आप को तौल लो, समझ लो. वेयर आर यू इन दिस पॉलिटिक्स? वेयर इज योर इंटरेस्ट? यू आर जस्ट अ फुटबॉल. जिसको जो मर्जी आती है वो उस तरीके से किक करके आपको लेके चला जाता है. Today has to be the first purpose of our coming together to see are we really following in the footsteps of Christ. And Sant Patras ने
अपने जो उनका दूसरा पत्र है, जो पहला पत्र है, उसमें संत पतरस ने हमको याद दिलाया, प्यारो आपको परखने के लिए जो अग्नि परीक्षा आपके बीच चल रही है उस पर चकित ना हो जाइए. Do not be surprised that we have to suffer for the sake of our faith, of our discipleship of Christ. मानो आप लोगों पर कोई अनोखी घटना घट रही हो, नहीं, आप आनंद मनाइए, क्योंकि जब क्रिस्त की महिमा प्रकट होगी तो जिस मात्रा में आप क्रिस्त के दुर्भोग में सहभागी होते हैं उसी मात्रा में हर्षोल्लास से आनंद विभोर हो जाएंगे. Therefore, the more we enter into the Paschal mystery of Christ, the more we suffer with Him, the more we will also experience the joy that comes from Him. यदि आप क्रिस्त के शिष्य होने के कारण दिखारे जाते हैं तो धन्य हैं. Thank God, praise God that because we are disciples of Christ, we are actually suffering insults and discrimination and harassment and everything. क्योंकि महिमा प्रदान करने वाला आत्मा, हाँ, ईश्वर का ही आत्मा आप लोगों पर विश्राम करता है. Because the Holy Spirit is in you and Holy Spirit is above you and within you. सावधान रहिए कि आप में से कोई भी. Now remember these words of Saint Peter to us, his warning. कोई भी हत्यारा, which means murderer, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कामों में उलझने के कारण कष्ट न झेले. And this is a warning to us that you be careful, he says, that you are not suffering because you are doing all these wrong things in life. That is not suffering for Christ. इसके विपरीत यदि उसे क्रिस्त का शिष्य होने के कारण दुख सहना पड़े तो वह इससे लज्जित ना हो, इस नाम के लिए वह ईश्वर का महिमा गान करे. But if you have to suffer because you are a believer in Jesus Christ our Lord, don't be discouraged. Don't be demoralized because your reward is great in heaven. इसलिए जो लोग ईश्वर के इच्छा अनुसार कष्ट झेलते हैं वे अपनी आत्माओं को विश्वास पात्र सृष्टिकर्ता के हाथ सुपुर्द करके शुभ कर्म में लगे रहें. Let them continue doing the wonderful work that they are doing for the greater glory of God, for the praise of His name. तो यह है जो संत पौलुस ने भी हमको बताया है. भाइयों, इन सब का निष्कर्ष यह है कि जो कुछ सत्य है, आदर के योग्य है, न्याय संगत और पवित्र है, मन भावन तथा स्तुतीय है, यदि कोई सद्गुण है या प्रशंसनीय है तो इनका मनन चिंतन कीजिए. If something is or everything that is true, that is honorable, that is just, that is pure, that is lovely, that is commendable, that is of excellence, and that is praiseworthy, think of these things. Then only you will shine out like stars in this shining in the sky. जो सितारे चमकते हैं उसी तरह आप लोग भी चमकेंगे इस धरती पर, especially in this corrupt world. Therefore, don't be afraid. डरो नहीं. Be ready to give a witness of your hope. जो भरोसा है आपके दिलों में, जो उम्मीद है आपके दिलों में, इसकी गवाही देने के लिए हमेशा तैयार रहो. Never be afraid and do it, but do it with all gentleness, all love, all kindness, all goodness, all the fruits of the Holy Spirit that have been given to you. But never be afraid, never hesitate to give an account of the hope that is in you. तो यह है जो आज हम हमारे सामने रखें. Let us also make it not as a political meeting, but also a spiritual convention, helping us to grow more and more in our love for Christ, experiencing His love in us, and the outpouring of the Holy Spirit, and our communion in the Holy Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. सबसे पहले धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स को कि as a representative of the Communist Party of India CPI आपने हमें आमंत्रण दिया है, इनवाइट किया है. तो पार्टी की ओर से मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपका जो संघर्ष, आपको जो लड़ाई, आपको जो struggles, we are with you. And whether it is for the recognition, whether it is for the representation,
whether it is for the reservation, for all these genuine demands, it is nothing, nobody's charity. It is a right as a citizen of this country. देश के नागरिक होने के नाते हमें मिलने का ये तमाम मांग के लिए आप लोग लड़ रही है, इसलिए आपके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI है। और ये बताने मेरे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन NFIW का भी जनरल सेक्रेटरी निशा सिद्धू भी मेरे साथ आए हैं। और निशा सिद्धू जी के और से भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस संगठन में उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, आपकी संघर्ष के साथ है। साथियों, इधर जस्टिस ने बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संविधान शुरू हो रही है वी द पीपल, वी द पीपल, हम लोग, यही है कि उसका हिंदी हम लोग। मगर वो हम का आज, इट इज नॉट दैट वी द हिंदूज और वी द क्रिश्चियंस और वी द मुस्लिम्स और वी द सिख्स, इट इज वी द पीपल, हम लोग जो ईसाई लोग नहीं, हम लोग जो सिर्फ हिंदू लोग नहीं, हम सिर्फ मुसलमान लोग नहीं, हम सिर्फ सिख लोग नहीं, बट हम सब एक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जो हम का जो वी का अभी उसका डेफिनेशन मेरे ख्याल से बहुत मोर देन 75-80% तक उसका चेंज हो चुका है। अभी क्या है कि हम बोलेगा तो हम द हिंदुत्ववादी, ये देश बोलेगा तो हम जो हिंदुत्ववादियों के लिए है। और संविधान और उसके अंदर जो हक हर एक नागरिक को, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी प्रांत का हो, सबके लिए जो बताया है, जो राइट्स, हमारी हक, संवैधानिक हक, वो सिर्फ हम द हिंदुत्ववादियों के लिए है। ऐसा हो गया है, हो रही है हमारी। मैं आज का किसी एक पत्रकार ने मुझे अभी पूछा था, आप क्या कितना सक्सेस मान रही है आज का ये इस कन्वेंशन को, इसका क्या होगा, आपका मांगों का क्या होगा? मैंने बोला कि मांगों को क्या होगा वो कुछ नहीं होगा, वो अलग बात है। आई एम सीइंग दिस एज ए बिग सक्सेस। व्हाई? बिकॉज हम 15 राज्यों से इधर आके, देश की राजधानी पे आके, पार्लियामेंट के सामने आके हम बोल रही है, हम अपनी आवाज उठा रही है। हमारी हक, संवैधानिक हक किसी का मेहरबानी नहीं, वो हमारी हक है, वो हमें देना है। वो आवाज हम आज भी उठा रही है। दैट इज द सक्सेस ऑफ, दैट इज द विक्ट्री ऑफ दिस कन्वेंशन। बिकॉज द गवर्नमेंट एट द सेंटर, बीजेपी लेड RSS गवर्नमेंट एट द सेंटर, वो लोग नहीं चाहते इस देश का जो हिंदुत्ववादियों के अलावा और कोई आवाज उठाए, नहीं चाहते है। इसलिए जब हम खड़ा होके असल नागरिक होने के नाते हमें अपने यीशु मसीहा से, हम जो भी धर्म में विश्वास कर रही है, और खास कर इधर बताइए ईसाई धर्म में विश्वास कर रही है, वो धर्म का पालन करना, उसका प्रचार करना, ये तमाम हक संविधान ने हमें दिया है, वो हमें चाहिए, वो हमारा ही हक है, देश का हक है। ये बोल रही है आज हम इधर खड़ा होकर देश की राजधानी में। हमें ये देखना है कि साथियों की, मैं दो और बात बोल के मैं समाप्त करूंगी कि आज बहुत सारी कानून, संविधान की किताब है, मगर जैसे मैंने बोला जो प्रियम्बल के अंदर वी से स्टार्ट हो रहा है, वी आज क्या है, हम सब उसके अंदर है। तो प्रियम्बल का स्थिति है, तो फिर हमारे हक होगा जो आर्टिकल्स के माध्यम से इधर मेंशन हुआ था। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15, आर्टिकल उसके बाद 25, 300 तक जो भी आर्टिकल आप देखिए, वो तमाम आर्टिकल को एक तरीके से उसको खत्म किया है। कैसे? पार्लियामेंट में एक कानून लेके आया, वक्फ एक्ट।
उसी के माध्यम से सारा उल्लंघन ये तमाम जो आर्टिकल्स का हो रही है। और हमें कभी सोचेंगे कि ये तो हमारा तो नहीं है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी केस की जो सुनवाई होती है कोर्ट के अंदर, जज भाई के जो भी कुछ बातें अपना मुंह से कहे, वो कहने वाला लिखित में रिटन जजमेंट नहीं, मगर हियरिंग के वक्त कुछ भी जज ने कुछ बोलेगा तो वो तक प्रेसिडेंट बनती जा रही है। तब ये कानून ऐसा बना के रखा है। तो हम जब ईसाई लोग या कोई और धर्म का लोग हमारी अधिकार के बारे में पूछने के वक्त, बोलने के वक्त, अरे वो कहाँ है, ये सब पहले से ही पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये ऐसा एक बहुत क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल, एक सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एक क्रिटिकल सिचुएशन से हम सब गुजर रही है इस वक्त। ये बात सही है, ईसाई लोग और अपनी अधिकार के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, मगर ये भी होना चाहिए, ये सिर्फ ईसाई लोगों का एक जिम्मेदारी नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का। मैं समझ रही है बहुत सारी पार्टी, खास करके मैं अपनी पार्टी के बारे में बता सकती है कि हमारी पार्टी जो सबका, खास करके जो इश्यूज, वायलेंस, अटैक्स, एट्रोसिटीज अगेंस्ट क्रिश्चियंस आ जाती है, हर जगह पे हम खड़ा होके आवाज उठा रही है। ये हमारे लिए 10 वोट का 2 सीट की बात नहीं है, हमारा भी बहुत अनुभव है। जितना भी हम बहुत क्या है, एंटी नेशनल, यूएपीए, ये तमाम केसेस हमारे ऊपर होने के बावजूद भी हमारी इंटरवेंशन की वजह से जो राइट्स को वायलेट हो रही है माइनॉरिटीज का, उस जगह पे खड़े होके उनके लिए, उनके साथ हम आवाज उठा रही है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रही है। तभी हमें वोट नहीं दे या ना दे, उसमें हमारी पार्टी 2 वोट और 10 वोट 2 सीट के लिए नहीं, हम सबका संवैधानिक हक को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम लड़ रही है। मगर इसलिए ये सिर्फ ईसाइयों का और सिर्फ दलित क्रिश्चियन का जो रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन कितनी साल से, मैं भी एक बार जो पार्लियामेंट सीट वाला पुलिस का पिटाई इसके लिए इसमें खाया था, दलित क्रिश्चियन का रिजर्वेशन को लेके इधर ही इतना बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, मगर वो भी अभी कंसिडर नहीं कर रही है, उसके लिए हम आवाज उठा रही है। और हमें ये इसलिए मैं बोल रही, हम भी जो दूसरी लोग जब आवाज उठा रही है, उनके साथ जोड़ना भी हमारा भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमें देखना है। मिलजुल कर इधर जस्टिस ने शायद, और इसके बाद किसी ने बताया था, नहीं बिशप ने बताया था कि हम सब एक है, उसी एकता के साथ। माइनॉरिटी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किरण रिजिजू का घर में एसी माइकल और यहाँ का यूसीएफ का लीडर को मैंने अपॉइंटमेंट लेके गया था कि उसमें पता चला छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में ईसाई का बहुत टॉर्चर, अन्याय, सताव, इनोसेंट परिवार को मारपीट करना। हम लोग ने बात को बताया तो उन्होंने बोला था कि ये बात को होम मिनिस्टर अमित शाह जी को बताने से ठीक है बोला है। हम लोग भी एग्री होके निकल गया। मैं तोरा अरुणाचल जो देश का, प्रदेश का जो इंडियन क्रिश्चियन के लिए हम एक देश का है, क्या क्या काम किया थोड़ा सा बताता हूं। 2008 में LK आडवाणी अरुणाचल में आया था, तो उधर का मिशनरी लोग, हम लोग ने बोला है कि ये उड़ीसा स्टेट एक स्टेट है, उसमें कंडमल बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, काफी नाम को रेप करके आग में फेंक दिया और चर्च को जलाया, लोगों को कत्ल किया। तो हम लोग ने बोला है कि आडवाणी जी को, आप जैसा नेता भारत देश में जिंदा है और एक दूसरा भारतीय को ऐसा कत्ल करेगा, सर आपको अच्छा लगता है क्या? आप रुकाना है, आप जैसा भी कोशिश करिए। हम लोग ने मिला सचमुच का 2 दिन 3 दिन का बाद में कांडामल के से पास्टर दोस्त को मैंने फोन किया
थोड़ा शांति हुआ है। ये एक काम है। और 2021 को गुरुग्राम में दिल्ली बाइबल फेलोशिप का इलेक्शन ऑर्डर आ गया था। हम रिवरेंड विजय लाल ने मेरे को ड्यूटी लगाया। मैं यहाँ कहा थोड़ा बात करके गुरुग्राम का वो दिल्ली बाइबल फेलोशिप चर्च आज भी खड़ा है। और हम यही आज का दिन में जितना वकील है, एडवोकेट है भारत देश का, जो ईसाई लोगों के लिए, माइनॉरिटी लोगों के लिए केस लड़ देता है, उसको मैं सलाम करता हूं। और दूसरा बात यह है कि हम लोग भी ज्यादा नेगेटिव में भी नहीं चलते हैं। कुछ चीज हम लोग भी पॉजिटिव अप्रोच भी करना है, अपना डीसी से हो, एसपी से हो। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को कि आपका राज में, हमारा इंडियन देश में सिर्फ 3 करोड़ क्रिश्चियन है, आप 140 करोड़ देशवासी को सुख शांति देने से आगे 3 करोड़ को शुरू करिए। और ये 3 करोड़ लोग चैन से, शांति से, उन्नति से, प्रगति से आगे बढ़ने से सर नरेंद्र मोदी जी आपको मैं तारीफ करने वाला हूं। अगर ये लोग रोते रहेगा, हम भी देशभक्त है। मैं अरुणाचल प्रदेश देखने में हमको नेपाली बोलता है, मगर मेरा हिंदी अच्छा है, सच बोलिए। सलमान खान, शाहरुख खान भी मेरा हिंदी को नहीं सीखेगा, मैं हरा दूंगा। मैं हिंदी अच्छा बोलता हूं, देशभक्त हूं। मेरा प्रदेश का उस पार में चाइनीज पीएलए आर्मी रखता है, और हम उधर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडियन आर्मी को हम लोग साथ देता है। हम लोग से देशभक्त शायद दिल्ली में भी नहीं होगा, हम लोग सबसे ज्यादा देशभक्त है। तो इसलिए मैं एक भारत का देशभक्त एक आदमी सबसे अपील है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, आप दोनों कुछ भी करिए, ये 4 करोड़ क्रिश्चियन को पूरा प्रोटेक्शन चाहिए, हमको पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। अगर क्रिश्चियन रेप करके घूम रहा है तो जेल वाली है, मादन करके घूम रहा है तो जेल में रखिए, हाँ, किसी को आगजनी करके घूम रहा है तो जेल में रखिए। मगर वही प्रार्थना साधना करके शांति से चुपचाप घूम रहा है, ऐसा आदमी को बेचारा क्यों मारने दे रहा है? लड़ना है तो 100 करोड़ का 100 करोड़ से लड़िए। 100 करोड़ अगर 10,000 आदमी को लड़ के मैं हीरो है, मैं बलवान है, नहीं सोचना है, ये गलत है। हमारा भारत देश, मेरा भी हिंदू का बहुत फ्रेंड है, मुस्लिम का भी फ्रेंड है, बुद्धिस्ट का भी फ्रेंड है। आप लोग भी अच्छा आदमी है, मगर आपका जिम्मेदार है कि सिर्फ ये 3 करोड़ मेनलैंड क्रिश्चियन को बचाओ। हमारा नॉर्थ ईस्ट असम में भी हिंदू बहुत है, 3 करोड़ ऐसा हिंदू है, मगर उधर तो मारपीट नहीं करता है, क्रिश्चियन लोग आराम से जी रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहा है? ऐसा मत करिए। अगर लड़ने का बहुत ही शौकीन है तो चीन का बॉर्डर में जाइए, सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ का साथ जाइए, उधर पाकिस्तान बॉर्डर। क्या यहाँ 2-3 आदमी को 1000 आदमी मिलके थोड़ा पिटाई करेगा? ये अच्छा बात नहीं है। मैं अपील है, मेरा बात को प्रधानमंत्री जी सीरियस लीजिए। मोदी जी, मेरा उधर में 500,000 क्रिश्चियन लोग 2023 लोकसभा चुनाव में 80% आपका नेता को दिया है, इसलिए नहीं दिया कि आप हमारा लोगों को सताने देगा। आपका राज्य में फुल प्रोटेक्शन चाहिए, ये मैं डिमांड करता हूं। और नेशनल मीडिया लोग आया है तो इसको ब्रॉडकास्ट करिए। आजकल हम यही देख रहे हैं कि देर आर 4,005, almost 5,000, touching 5,000 attacks, but only 39 FIRs have taken place. There are many challenges to the anti-conversion bills that are there and still has yet to be taken up in the High Court. Then there are 7 million tribals, STs, who are at risk because of their Christian faith. We have seen that Dalit Christians have been denied, not only Dalit Christians, Dalit Muslims also have been denied their constitutional rights for 75 years. I am here this afternoon to talk about not just the Dalits, not about Christians in general, that also, but we are talking about particular sections of society, the Christian society, who
who have been particularly badly affected. और वो है आदिवासी और दलित. और आजकल हम देख रहे हैं कि even the OBC communities जो मसीह में आ रहे हैं उनको भी आजकल बहुत सताव महसूस हो रहा है. And so we want to ask why this is happening. Our constitution, which is based on the principle of equality, liberty, equality and fraternity, it guarantees us freedom of religion, freedom to preach, propagate. तो जब हम हमारे फेथ को हमारे फेथ के बारे में जब हम बोलते हैं तो किसी को अपनाने के लिए मन होता है, उनकी जिंदगी में एक बदलाव आता है और लोग यीशु मसीह को जानना चाहते हैं और ढूंढना चाहते हैं. क्या ये गलत है कि ये गैर कानूनी है? And I just want to say that this is what we want in our country, the freedom of religion, the freedom to practice, freely propagate our beliefs. It is also a freedom of conscience, which is a very, very fundamental, as fundamental as right to life. The freedom of belief and faith is as much as that, because it is the conscience that believes. And if we are denied the freedom of conscience, what kind of a constitution do we have? We have a constitution we are proud of. We have a government which has the duty, which is the duty bearer to protect our constitutional rights. So we want to, at this point, from this platform, we want to call upon our governments, our ministers, our chief ministers, our governors, the President of India, to ensure that our constitutional guarantees are given their space. बस एक और चीज़ है जो हमारी आबादी है, वो आधी आबादी, we are talking about women, right? And we need as a community to recognize that my brother from Northeast, he was talking about how nuns were raped in Orissa. But that is also happening. It's not only about rape, it's also about being beaten up, being chased away from the house, being dispossessed of the family. They have to leave their villages, their houses and lands and go away to some other place, to some other city, being displaced. But as our Archbishop beautifully spoke, he says, do not fear. The Lord is with us when we are being persecuted. We do not fear that, but we are in solidarity with those who are affected, those who are persecuted. And we are in solidarity with the mothers and the children, because Jesus said, have pity on those who have small children and those who are feeding mothers when that day comes. He was talking about the destruction of the temple. But the same situation is actually happening in India right now. When I was reading the Bible, if you read the epistles, you hear about people say, the Bible says, do not fear when they bring you before the authorities. I will give you the words. I never imagined that will be the India that we face. That we will face this in India. जो Bible में लिखा है, it was written in the 1st century, लेकिन आजकल जो हम महसूस कर रहे हैं, वो 1st century 2000 साल पहले लिखा हुआ था. Not to fear the authorities. We do not fear. I have overcome the world. That is the message I want to give. I want to give the message that we are not to fear. We are persecuted. We are oppressed. We have rights which are being violated. But I know that one day we will overcome, that the women and the children of this country, not only the Christians, not only Dalits, not only Adivasis, there will be a dawn of freedom, the kind of freedom that Rabindranath talk about. All of us will be a part of that. And today, as we gather to meet and talk about our country and our Christian community, we want to say that we are in solidarity with people who want to protect our rights, protect each country's faith, protect our constitution. And we want to say, along with our founding fathers, Jai Hind! You cannot suppress faith, whether you are Buddhist, Hindu, Sikh,
Portuguese or British or the Mughals. You cannot suppress any faith. And nobody can therefore suppress Christianity, Sikhism, Islam, Buddhism, Jainism, and of course Sanatan. So I once again praise Prime Minister Narendra Modi for showing us the path to be faithful to the faith in which you are born, to take any criticism, to face any challenge, and keep your flag flying. So it's with great pride that I stand before you, a Christian, an Indian, a Catholic, a parishioner of St. Teresa Parish. It's with great pride I go everywhere and say I'm a Christian. And it is that common faith that I speak of when I also support the faith of Lieutenant Colonel Samuel, the Supreme Court of India, and before that, the High Court, told this soldier who used to, as a commander, go to the regimental temple, put on a turban, go inside, do everything, till it came to doing the Homa, the sacred thing. As a Catholic, I understand that. In my own parish, I can do many things. I cannot say Mass. There are some things you can do and some things you cannot. So we have a struggle here of what is the right, how do we profess it? What is the duty as a journalist? He said, I'm a journalist 40 years. He knows not. I'm a journalist for 55 years. For 40 years, I've been in the service of the church. A journalist has problems. He has to report the truth. The truth can be bitter. The truth can be harmful. But he's sworn to report the truth, even at the pain of going to jail. As a journalist, I can tell you, I too have gone to jail. The risks you take when you assume certain duties. When you become a Christian, you know that you will face persecution. When you become a soldier, you know you can do certain things you cannot do. But in the larger conflict between duties and your constitutional rights, I would say, as a non-lawyer, as a common Indian, that my constitutional rights are important. It is because of my faith in the Constitution that I fight the fight with my Dalit brothers of all faiths. Dalit Sikhs can get reservations, but they can't go to a high caste Gurdwara. They still have, in this land, untouchability. You still have caste barriers. So these are struggles where we join in recognition of the fact that the constitutional right of personal freedom is a very important thing. So I stand here before you expressing my solidarity with Lieutenant Colonel Samuel Tomlinson. And I think we should stand, I hope he will go before the Supreme Court in a review petition and get from the Supreme Court the justice that he so deserves. I also hope that my brothers from the Dalit group will also get justice. 75 years, it is not 50 years, somebody said. The moment Presidential Order of 1950 was passed by Jawaharlal Nehru, by Ambedkar, under the pressure of the upper caste of the Congress Party and the equivalent of the BJP of the time. Under their pressure, these two stalwarts were forced to pass a law which took away the rights of Dalit Muslims and Dalit Christians, also of Dalit Sikhs and Dalit Buddhists. But those two people got their rights back. It is the same constitutional struggle that continues. When the Supreme Court has turned blind eye once, we hope this time its eyes will be opened and it will weigh the constitutional rights of citizens against what other people want or want to pertain. It is in the same way that we, because you see the slogans behind it, the large number of violence, the hate speech that is going on, the complicity of state governments,
the complicity of police forces, of thanedars, station house officers. I have toured this country during COVID and after COVID, across with Harsh Mandar in Karawai Mohabbat, visiting people, particularly Muslims, who have been victims of mob violence, but also Christians. You'll be shocked and surprised to know that 2 tribal Christians of Jharkhand were murdered by mobs for carrying beef. When they make a law against one minority, the law impacts all minorities. The anti-conversion laws were made against Christians. They tinkered with it slightly, and today Muslims are bigger victims of this than we are. So let us not rejoice that somebody else is suffering, because the same law can be used against us. The history of this convention, which was to be a protest here, then a protest at Ramlila ground, and now a convention at Jantar Mantar, is itself symptomatic of what is happening in this country, and the suppression of the rights and the environment of fear that has been spread on all communities, or particularly on the religious communities. But this is Jantar Mantar. Mahatma Gandhi's grandsons have protested here. Victims of great massacres, the Sikhs, have protested here. Dalits many times protest here, at least twice a year, if not more. Women have protested here, farmers have protested here. Here, even if you had a prayer meeting, it would be a protest. Because this is Jantar Mantar, the only place where you can officially protest in the national capital region. So whether it is a convention or whatever name you give it, it remains a message to governments in power. I will not name leaders in power, but the governments in power. I presume leaders make mistakes under pressure, as, for instance, Jawaharlal Nehru made several mistakes under pressure. So I'm not going to take any name. Lastly, and I'll conclude in 2 minutes, Richard Howell, as I said, gave you a long list of what Christians have done. Meenakshi went a step further and said we have given 90% of health and 80% of education. But I put it to you, even if we had done nothing for this country, but just been born here, would we not deserve the protection of the government? Would we not deserve the kind hand of the President and the Prime Minister and the Police Commissioner? Would we not deserve food and jobs and the freedom of faith? So I put it to you, my brothers and sisters, today the government has far more investment in education than Christians have. Government and large industries have far more investment in education and health than the church has. But so what? We serve our country to the best of our ability as Christians, as what Christ has taught us. So do not be unnecessarily humble. Do not be at all proud. As citizens, we stand demanding equal rights and demanding protection of the law at all times across the country, irrespective of which party rules which state, which caste SHO is governing which police station. We demand an equality of law across the country, and freedom of faith is a big part of that equality under law. I thank you for listening to me. प्रभु यीशु मसीह प्रेम है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम करना उन्होंने सिखाया. प्रेम के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते. God is love. He created the world out of love. He cannot do anything but love. इसी प्यार को लेके मदर टेरेसा, आपने नाम सुना होगा, अब उन्हें सेंट टेरेसा कहते हैं. वो संत क्यों बन गई? क्योंकि उन्होंने सेवा करी ऐसे लोगों की जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको फेंक दिया जाता था, उनको उन्होंने उठाया, उनके जख्म भरे. एक दफा मदर टेरेसा से पूछा गया, क्या आप सेवा का काम करते करते थकती नहीं?
उनका जवाब बहुत अच्छा था, जो बाइबल का जवाब है कि इन लोगों में मुझे परमेश्वर का रूप नजर आता है, यीशु मसीह नजर आता है, तभी करके मैं इनकी सेवा करती हूँ। सारी दुनिया जानती है, एक दिन सेवा नहीं, सारा जीवन मदर टेरेसा ने सेवा करने में लगा दिया। कुचले हुओं का, फेंके हुओं का गटर से उठाकर, मेरा सौभाग्य रहा मैं उनको मिल सका, उनके स्थान पे जा सका जहाँ लोग रहते जिनकी वो सेवा करती है। मदर टेरेसा का नाम पूरे संसार में जागृत है, यीशु मसीह की सेवा करने वाली। उससे सबक क्या मिलता है? हिंदू धर्म में कहते हैं अतिथि देव भवो, अतिथि परमेश्वर का रूप होता है। बाइबल ये शिक्षा देती है। अतिथि में फिर वो दलित होवे, आदमी होवे, औरत होवे, कोई भी होवे, उसमें फिर आप अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि समस्त मानव जाति परमेश्वर के स्वरूप में बनी है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी की भी जाति का, आप उसमें अंतर नहीं कर सकते। बाइबल यह शिक्षा देती है। तो हम सबको, भारतवासियों को अतिथि मानते हैं। भारत में दरिया बहुत मशहूर है, माँ माना जाता है, गंगा मैया कहते हैं हम, जमुना मैया है ना, सतलुज, चनाब, रावी, ब्यास, मैं पंजाब का हूँ, उनका नाम ही है पंच आब, 5 दरियाओं के नाम पे वो बना। उड़ीसा में महानदी है, गुवाहाटी में भी बहती है नदियां। सारी नदियां सागर में जाके मिल जाती हैं। सारी नदियां सागर में जाके एक हो जाती हैं। ये बात कही थी उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने, जो उड़ीसा के पहले क्रिश्चियन, पहला लॉयर जो पूरे उड़ीसा में आया, वो मधुसूदन दास जी थे, यीशु मसीह के अनुयायी। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, महानदी में जल संस्कार किया, तो उन्होंने नाम मधु रखा, मधुसूदन। मधु, क्योंकि भारत को मधु की जरूरत है। Madhusudan Das accepted Christ, and when he was baptized, he gave himself the name Madhusudan. Madhu means honey, honey that is sweet, honey that we like to unite people, और नाम सुधन रखा, हिंसा नहीं, मेल मिलाप की बात करी मधुसूदन दास ने। मसीही थे, लेकिन एक बात जो अभी तमिलनाडु के दलित भाइयों ने कही, one thing that our brothers from Tamil Nadu were asking for, Dalit rights, which are given to other communities. When Madhusudan Das took water baptism, he lost his right even to ancestral property. He said people started treating me as an outcast. Later on, he is recognized as Utkal Gaurav. उड़ीसा का बनाने वाला मधुसूदन दास जी हैं। उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर उनका बुत लगा है, उनकी कब्र है अभी भी, मैं देख के आया हूं। उनकी लाइब्रेरी है। गांधी जी मधुसूदन दास के मित्र थे, और पता क्या मधुसूदन दास ने किया? माय फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु and all those who are suffering because of Dalit, a high caste Madhusudan Das opened a tannery. चमड़े का काम किया जहाँ जूतियां बनती थी, वहां उच्च जात के लोग नहीं जाते। तो उनसे पूछा गया, आपने चमड़े का काम क्यों शुरू किया? बोले सबको एक करने के लिए, सबको एक करने के लिए। गांधी जी, अंबेडकर जी उनके दीवाने थे। मधुसूदन दास उत्कल गौरव यीशु मसीह के शिष्य थे। यीशु मसीह से उन्होंने सीखा, भेदभाव नहीं करते, जात पात पूछत ना कोई, हरि को जो पूजे सो हरि का होए, कबीर ने कहा था। यीशु मसीह ने भी यही कहा है। वो सबको मेल कराने आए। मधुसूदन दास उत्कल गौरव सब कुछ होते हुए
प्रथम उड़ीसा का लॉयर। एक और बात बताना चाहता हूं मैं, जगन्नाथ टेंपल को उस समय की सरकार लेना मांग रही थी कि सरकार के अंडर आ जाएगा। मधुसूदन दास खड़े हुए, लड़े सरकार से कि इस हिंदू टेंपल को आप ले नहीं सकते। वो केस जीत गए। जगन्नाथ टेंपल आज भी वहां के जो धर्मकट्टा हैं, चलाने वाले हिंदू भाई बहन हैं, उनके अंतर्गत आता है। मधुसूदन दास हिंदुओं के लिए लड़े। सिर्फ उनके नाम पे कॉलेज है, लॉ कॉलेज, उनकी बिटिया के नाम पे विमेन कॉलेज है। मधुसूदन दास को भूलना मत। मुश्किल ये है, हमारी याद इतनी छोटी है, हम भूल जाते हैं। ये हीरो हैं हमारे मधुसूदन दास। अब मैं पंजाबी हूँ, पंजाबियों का नाम ना लूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। राजकुमारी अमृत कौर का नाम सुना है आपने? राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के महाराजा की बेटी थी। कपूरथला का महाराजा प्रभु यीशु मसीह को मान लिया। राजकुमारी अमृत कौर लखनऊ में पैदा हुई, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ी, वापस आई भारत। गांधी जी की सेक्रेटरी रही 16 साल। राजकुमारी अमृत कौर एक मसीही नारी, गांधी जी की सेक्रेटरी 16 साल, भारत की आजादी के लिए लड़ी, जेल गई। उन्होंने आज एम्स में राजकुमारी अमृत कौर के नाम का नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। राजकुमारी अमृत कौर मसीही थी, गांधी जी की सेक्रेटरी थी, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि यीशु प्रेम है, यीशु ने उनका जीवन बदल दिया था, तो पूरे संसार को बदलने के लिए निकल गई। याद रखना भाइयों बहनों, राजकुमारी अमृत कौर। पंजाब के एक और सपूत हुए साधु सुंदर सिंह, उन्होंने बाइबल जलाई, मसीहों पे पत्थर फेंके। मां उनकी भक्तन थी, मां उनकी गई मर। परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, मेरी मां मर गई। भक्ति कराती थी, प्रभु परमेश्वर के बारे में बताती थी, भक्ति रस में वो रचे हुए थे। परेशान हो गए, कहने लगे हे परमेश्वर, अगर कोई संसार में परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अपने बाप को भी कहते हैं, अगर परमेश्वर ने मुझे दर्शन नहीं दिए मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। 18 दिसंबर 1904 की बात है, ये रामपुर लुधियाना में। 18 दिसंबर 1904 सवेरे 3 बजे उनके कमरे में जहां वो बैठे थे, ठान के कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, एक रोशनी चमकी। जब रोशनी चमकी तो वो कहने लगे कि जी अब ये तो कुछ हो गया, ज्योति चमक रही है। फिर उन्होंने देखा एक शक्ल नजर आई, फिर शक्ल नजर आई तो साष्टांग प्रणाम करने लगे। फिर वहां से आवाज आई, मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है, मैंने तेरे लिए अपना प्राण दिया। सुंदर ने अपने कानों से 15 साल का था नौजवान, मैं यीशु मसीह हूं, तू मुझे सताता है, मैंने तेरे लिए अपना प्राण दिया। सुंदर सिंह हैरान थे, लेकिन दर्शन हो गया था यीशु का। कमरे से नीचे उतरे, अपने पिता को कहते हैं मैंने यीशु मसीह को जीवन दे दिया। वो कहे तू पागल हो गया, अभी तो तूने बाइबल जलाई, लोगों को, तू मसीहों को पत्थर मारता था, आत्महत्या करने जा रहा था, अब कहता मैं मसीह हो गया हूं, तू तो मरने लगा था। पता अपने पिता को क्या जवाब देते हैं? पुराना सुंदर सिंह मर गया, अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो नया है, प्रेम करने वाला। कहता बापू ओ मैनू तो रब मिल गया, जेदी मैं उड़ीक च सीगा मैनू मिल गया। यीशु ने दर्शन देता,
यीशु मसीह के दर्शन से ये 15 साल का जवाब पूरी दुनिया में भ्रमण किया, दुख झेला, मार खाई, यीशु मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में किया। 1920 में ये बाहर निकल गए थे भ्रमण करते हुए, प्रचार करने के लिए। जवान पंजाबी साधु का भेष पहना, नंगे पैर, सर्दी हो या गर्मी, सब जगह जाते थे। सुंदर सिंह को यीशु मिल गया। यीशु प्यार है, यीशु ज्योति है। ज्योति मेल कराती है, जुदाई नहीं। ज्योति अगुवाई करती है, तोड़ती नहीं। हमको ज्योति की जरूरत है जो यीशु दिखाते हैं प्यार की। वो अगुवाई करेगी, चलाएगी, आगे लेके चलेगी, वो जानना हमें जरूरी है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र से लोग भी आए हैं। भारत महाराष्ट्र में 3 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। महात्मा फूले, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, उनके नाम पे भी यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र में उनका नाम आदर से लिया जाता है। फूले, ज्योति फूले शादी में जा रहे थे अपने ब्राह्मण दोस्त की, कि उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोले तू शूद्र है या शादी के जश्न में कैसे जा रहा है? उनको धक्का लगा, ये तो मेरा दोस्त था, इकट्ठे पड़े थे और अब हमें धक्के मार के निकाल दिया। वो घर गए, पहले अपने आप को देखा, कि मैं भी तो जात पात करता हूं। कुएं खुदवाए जिसमें से दलित आके पानी लेते थे, कि अगर मैं जात पात का शिकार हूं तो मैं दूसरों को भी तो ना सिखाऊं। पानी कर दिया, पत्नी को सिखाया, स्कूल खोले। फूले यीशु मसीह के दीवाने हो गए थे। उन्होंने केरला से जो भाई हैं वो जानते हैं ओणम का त्योहार मनाया जाता है। बलि राजा के बारे में कहा जाता है। बलि राजा एक राजा थे जिनका शासन धार्मिकता पे आधारित था। बलि राजा वॉज द किंग ऑफ राइचियसनेस। उनको लोगों ने धोखे से दगा दिया, तो वामन का अवतार लेके उनके पास वामना में आए। राजा को कहते हैं 3 गज जगह दे। राजा ने कहा तू छोटा सा है, तू ज्यादा ले ले। बोले नहीं 3 दे दे सिर्फ। ये केरला में कहानी है, पता कर लीजिएगा। महात्मा फूले ने भी लिखा है, पढ़ लीजिएगा। उन्होंने फिर अपना अवतार लिया पूरा। 1 कदम से पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे कदम से आकाश नाप दिया। अब तीसरा कदम कहां रखे? उसके सिर पे रखा और बलि राजा पताल में चला गया। साल में 1 दफा बलि राजा बाहर निकलता है, सबको देखता है और कहता है मैं फिर आऊंगा और धार्मिकता का राज्य स्थापित होगा। अब महात्मा फूले महाराष्ट्र के हैं, कहानी केरला की है। वहां की कहानी को उठा के महाराष्ट्र में ले आए। मैंने स्टडी किया, तब बोल रहा हूं। कहानी को लाके कहते वाह, यीशु मसीह को भी छल से सलीब पे चढ़ा दिया, लेकिन यीशु मसीह जिंदा हो गए, वो दोबारा आएंगे। उन्होंने यीशु की भक्ति करी। उनकी किताब है गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब है महात्मा फूले की, ज्योतिबाई फूले की। उसमें लिखते हैं यीशु धार्मिकता के हैं, मेल मिलाप कराते हैं, वो दोबारा आएंगे। ज्योतिबाई फूले बोले थे ये। बोलो जय यीशु। उनकी पत्नी ने स्कूल खोले, है ना। आखिरी नारी पंडिता रामाबाई, वो बताना जरूरी है, फिर मैं समाप्त करता हूं। पंडिता रामाबाई पंडिता थी। पंडिता का उन्हें शीर्षक मिला कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। संस्कृत की माहिर, भाषाओं की माहिर। उनको भी यीशु मसीह मिल गया। अब यीशु मसीह मिल गया तो जात पात तो गई कि जी यीशु का प्रेम मिल गया, यीशु की ज्योति मिल गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
महाराष्ट्र में प्लेग आते थे, लोग मर रहे थे, उन्होंने नारियों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए एक वहां विद्यालय खोल दिया, पढ़ते थे वो। मुक्ति मिशन केदगांव में, केदगांव पूना के पास है, मुक्ति मिशन आज भी चल रहा है। महिलाएं जिनके पति मर गए थे वबा की वजह से, बच्चे जो यतीम हो गए थे, उनको लेके आई केदगांव में, उनका लालन पालन किया, पाला पोसा बड़ा किया। कोई जात पात नहीं थी, वो मिलके खाते थे। लेकिन मजे की बात पता क्या है, वहां एक काम हुआ, ये प्रार्थना करती थी परमेश्वर हम पे ज्योति चमका, अपने प्रेम से हमें भर दे। बच्चों को प्रार्थना करनी सिखाई है, बच्चों विद्या ज्योति के केलब के प्रार्थना करनी सिखाई। एक दिन, ये भी 1904 की बात है, 1904 जून में, साधु सुंदर सिंह दिसंबर में थे, ये जून या अगस्त में थी, 21 जून 1904 खेदगांव में एक लड़की प्रार्थना करके सोई कि परमेश्वर अपना दर्शन दे दे, मेरे को क्षमा कर दे। रात को भाइयों बहनों 21 जून 1904 खेदगांव के हॉस्टल में एक पलंग पर आग लग गई, एक पलंग पर आग लग गई। न जो मेट्रन थी भागी आई बाल्टियां लेके कि आग बुझानी है। जब लेके आई बाल्टी तो कहती है पलंग तो जलता नहीं, अंदर लड़की प्रार्थना कर रही है, ये कैसी आग लग गई भैया, या तो प्रार्थना हो रही है, आग लग रही है। परमेश्वर मूसा को भी आग में नजर आया था, झाड़ी में। थियोलॉजी के विद्यार्थियों, आग परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है, जो पवित्र कर देती है, बुलावा देती है। मुक्ति मिशन में 1904 को परमेश्वर की आत्मा की आग लगी, जो सारे संसार में फैली। वही आग भारत में लगनी है प्रेम की। हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, संविधान हमारा अधिकार है भारतीयता के, हम घमंड से कहते हैं भारतीय हैं। परमेश्वर आशीष दे, जितने यहाँ इकट्ठित हैं मिल के रहें, जैसे विद्या ज्योति ने कहा था, एक हो जाएंगे तो कामयाब रहेंगे। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, खासकर मसीह लोग, जिनके अधिकारों पे सवाल खड़े करे जा रहे हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है। पर ये लोग नहीं जानते कि हम किसी के सामने झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम केवल एक ही, प्रेज़ द लॉर्ड, आप सब साथ में हैं, हम केवल एक ही जगह अपना सर झुकाते हैं, वो है हमारा जिंदा खुदा। आमीन। ये जितना परेशान करेंगे उतना ज्यादा मसीहत निखर के आएगी, उतने ज्यादा मसीह अपने घर से आएंगे। ये परसिक्यूशन आया ही इसीलिए कि हम मसीह लोग सब अपने रिलैक्स जोन में बैठे हैं, जाग जाएं। पर ये हमारी गलती नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास एक ही खुदा है। हम घर के किसी कोने में से प्रेयर करते हैं तो भी वो हमारी सुन लेता है, इसलिए हम थोड़े सा आलसी हो गए हैं। लोगों को देखो वो क्या क्या करते हैं, उनसे ज्यादा चीजें हमारे पास है। ये लोग हम पे सबसे मेन एक चीज हमारे पे जो इल्जाम लगाते हैं धर्म परिवर्तन का, जो कि मिथ्या है, झूठ है, खुद प्लांट करते हैं किसी को चर्चेज में और उनसे ये बुलवा देते हैं कि 1 चावल बोरी 2 चावल बोरी। अरे भाई 1 चावल बोरी किसी ने दी है, तुम 2 चावल बोरी देके उसको ले जाओ ना वापस। अगर ये सच है तो ये सच है ही नहीं, ये इस बात का सबूत है। 1 चावल बोरी की क्या हैसियत है, आप 2 चावल देके ले जाओ उसको वापस। पर ये नहीं जानते हम खुदा के खून से खरीदे हुए लोग हैं। कोई चावल की बोरी, कोई पैसा, कोई शोहरत, कोई ना सोना लोबान, कोई इस चीज की बराबरी नहीं कर सकता। हमने इस देश को क्या दिया, हम ये लोग चीजों को बताएं, हम लोगों को हम ये चीज बताएं, हमने भारत देश को क्या दिया है। एजुकेशन,
जो सरकार नहीं कर पा रही। यूपी में गवर्नमेंट ने 27,000 स्कूल बंद कर दिए, अब 30,000 हो चुके हैं। 30,000 स्कूल बंद कर दिए और 27,300 ठेके खोल दिए। ये सरकार की मंशा है कि एजुकेशन को इंडिया में से खत्म कर दिया जाए। आप इस चीज को समझें, एजुकेशन को खत्म करेंगे, जितना खत्म करेंगे उतने ही इनके भक्त बढ़ेंगे। और इनके अभी भी जो भक्त हैं वो सारे ऐसे ही हैं जो उनको साइन करने के लिए बोला जाता था वो बोलते हैं कहाँ। सारे लोग ऐसे ही हैं। अगर पढ़े लिखे लोग होते तो वो समझ जाते हैं चीजें कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, जो सरकार स्कूल कॉलेजेस नहीं दे सकी, वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 5 स्कूल्स 5 कॉलेजेस तो हमारे हैं। हम इंडिया को एजुकेशन दे रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा एक एम दे रहे हैं, उनकी सोच को बड़ा कर रहे हैं, पर ये लोग उस सोच को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो इंडिया में पूर्वज रहे हैं, मैं एक बार उनके आपको नाम बताना चाहूंगा और इन चीजों को आप भी बताएं लोगों को कि उनको पता लगे कि हम यहाँ नए नहीं आए हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। AR पिल्लई जनता प्रस्तुति दल के सदस्य थे, राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन के भी सदस्य थे, आजादी के आंदोलन में भी सदस्य, और एक वो मसीही परिवार से नहीं थे पर वो एक मसीही थे। साधु सुंदर सिंह जी, आप सब जानते हैं साधु सुंदर जी के बारे में। इनने गांधी जी को बाइबल भेंट दी। उस बाइबल को इनने पढ़ के उसमें से उनने ये पाया कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। ये भी हमारे मसीह प्रचारक थे। पंडिता रमाबाई, महिला उत्थान के लिए इनने काम किया, ये भी एक मसीह विश्वासी थी। नारायण वामन तिलक, ये भी इनने मसीह कविताएं इनने लिखी हैं। ये चीजों इनको नहीं पता है। इनको लगता है कि हम आप आसमान से टपक गए और डायरेक्ट यहाँ आ गए। आसमान से टपके हुए ये लोग हैं। इस देश के मूल निवासी आदिवासी और द्रविड़ ही रहे हैं, ये आर्यंस नहीं थे। ये आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आके कुछ 2% लोग, भारत की जनसंख्या के 2% लोग केवल नफरत फैला रहे हैं और इनकी नफरत ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। आप सब जानते हैं, हम मसीही लोग परेशान हो सकते हैं। जितने भी केसेस हो रहे हैं, पीछे इतने सारे नंबर्स हैं, 4,959, ये सारे नंबर्स परेशान हो सकते हैं, पराजित एक भी नहीं होगा। जिंदा खुदा हमारे साथ है, सबको बेल मिल रही, सब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये आरोप भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे आरोप झूठे हैं, हम सब जानते हैं। एक भी आरोप इनका सच नहीं होता है। सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीजें पब्लिक को दे, क्योंकि ये उनसे टैक्स लेती है। ये काम होता है सरकार का। सरकार क्या कर रही है? मंदिर, मस्जिद और धर्म को लोगों पे छोड़ दिया चाहिए ना। धर्म को लोगों पे छोड़ देना चाहिए। सब खाते हैं, सब रोटी खाते हैं, सबको पता है कहाँ अच्छा मिल रहा है, कहाँ बुरा मिल रहा है, सबको पता है। बिरयानी वाला बिरयानी खाएगा, रोटी वाला रोटी खाएगा, सबको पता क्या खाना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं लालच दे के, जो खुद 15 लाख का लालच दे के सरकार में आए हैं। ये लोग लालच दे के आए हैं, हम लोग लालच नहीं देते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम इनको लालच दें। अगर इनसे पूछा जाए कि अगर क्रिश्चियंस इतने बुरे हैं तो आप लोग क्यों अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ाते हैं? मिनिस्टर्स JP नड्डा सेंट जेवियर से पढ़े हैं, पीयूष गोयल डॉन बॉस्को से पढ़े हैं, निर्मला सीतारमण कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हैं, जयशंकर सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हैं, यहीं दिल्ली से। विजय जयशंकर, अनुराग ठाकुर, बांसुरी सुराज, रविशंकर प्रसाद, इनके बच्चे, रविशंकर प्रसाद के बेटे आदित्य, ये कार्मेल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर आपको एजुकेशन भी हमसे लेनी है और नाम भी हमारा बदनाम करना है तो ऐसा दोगलापन इंडिया में चलने वाला नहीं है। आप लोग साथ हैं मेरे? ये दोगलापना है या नहीं है? ये चीजें आप इनको बोल के बताइए। जब आपको एजुकेशन चाहिए होती है, जब आपको स्वास्थ्य चाहिए होता है, तब आते हैं आप क्रिश्चियंस के पास हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पहली नर्स थी, जिनने इनको स्वास्थ्य दिया, आज ये अपने पैरों में अगर पैर टूट जाता है, पैर की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर बनवाते हैं, रॉड डालते हैं या कपच्चा बांधते हैं। ये रॉड और ये प्लास्टर क्रिश्चियंस ने दिया है इस देश को। ये संविधान और मनुस्मृति की लड़ाई है। एक तरफ संविधान है, एक तरफ मनुस्मृति है।
ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वो हिंदू राष्ट्र जहां आगे हांडी पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, या वो हिंदू राष्ट्र जहां महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहां एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था, जहां औरतों को सती प्रथा में जला दिया जाता था, जिसको बंद करा राजा मनमोहन राय और विलियम बेंटिक, या SC/ST महिलाओं को जिनको अपना तन ढकने की अनुमति नहीं थी, ये वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं ही हुई हैं इसमें। आप महिलाओं को जागना पड़ेगा, आप महिलाओं को सबसे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मनुस्मृति ये लाते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं ही प्रताड़ित होंगी। इसके साथ में जितने भी इनोवेशंस हैं, आप मेरे हाथ में जो माइक है, जिस कैमरे से शूट हो रहा है, जो हमारे जेबों में मोबाइल हैं, जो हमारे घरों में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, AC, ट्यूबलाइट, बल्ब जितने हैं, सब क्रिश्चियंस ने इन्वाइट करे हैं और दुनिया को दिए हैं, उनका भौतिक जीवन आसान हो। और ये हम पे आरोप लगाते धर्म परिवर्तन का। आप सब लोग जागिए, और जो लोग नहीं आ पाए प्लीज कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये टाइम लड़ने का है, विजय देना खुदा के हाथ में। ऐसे फिरौन कई आए हैं, कई जा चुके हैं, ये भी जाएंगे, पर हम सबको रोड पे आना जरूरी है। हम दिसंबर के महीने में कुछ दिनों में अलग अलग चर्चेस में फेट्स का आयोजन होगा, मेले लगेंगे अलग अलग कलीसियाओं में, और उन मेलों में यहां से ज्यादा भीड़ होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कौम को जगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि यहां जागे हुए लोग बैठे हैं, तो आप सबों का बहुत बहुत इस्तकबाल, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की कौम को जगाना पड़ेगा, तो जाकर के हम ये काम जरूर करेंगे। 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कि ये जो मुद्दा है जिसके बारे में हम आज यहाँ बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस बारे में मसीह समाज में दो राय हैं। एक हिस्सा है जो केवल आत्मिक रूप से इन चीजों को देखता है। हम क्या करेंगे जी? हमको प्रार्थना करनी है। हम क्या करेंगे जी? हम प्रेयर एंड फास्टिंग करेंगे ब्रदर, दुआ करेंगे। बाइबल तो कहा हुआ है सताव आएगा और वो आना जरूरी है। तो आत्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार करेंगे। अच्छा है, मैं नहीं कहता कि बुरी राय है, ये बाइबल सम्मत राय है। दूसरा एक तबका है, वो कहता है कि हम केवल अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बाइबल को हाथ नहीं लगाएंगे। आज हमको दोनों चीजों की आवश्यकता है, हमको दोनों चीजों की आवश्यकता है। आपके एक हाथ में पवित्र शास्त्र होना चाहिए और दूसरे में आपका संविधान होना चाहिए। भारतीय मसीही किसी से कम भारत के नागरिक नहीं हैं। इस बात को हम यहां से डिक्लेयर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो अभी विंटर सेशन के लिए मिल रही है, वो इस बात को रियलाइज कर ले। हमने अपने साइज से कहीं ज्यादा इस देश में योगदान दिया, इसलिए नहीं कि हम किसी से डरते हैं, लेकिन इसलिए कि हम इस देश से प्यार करते हैं। इसको हमने बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। और यहां पे जो हम ये नेशनल क्रिश्चियन कन्वेंशन कर रहे हैं, ये हमारी पुकार है उस कोशिश के खिलाफ, वो कोशिश जो कि हमारा मुंह बंद करना चाहती है, वो कोशिश जो हमको दरकिनार करना चाहती है, वो कोशिश और वो आइडियोलॉजी, वो विचारधारा जो हम पर हर दिन हमले करवाती है, उसके खिलाफ में हमारा ये ऐलान है। और हमारी ये मांग है कि हमारी सरकार, जिन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है कि हर एक के धार्मिक जो राइट्स हैं उनको मिलेंगे और संविधान का पालन होगा, तो संविधान का पालन किया जाए। फरवरी 2015 की बात है, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को याद होगा। विज्ञान भवन में एक फंक्शन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे वहां पे, और उन्होंने बोला था मेरी सरकार सुनिश्चित करेगी कि भारत में हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। याद है आपको? विज्ञान भवन में हुआ था ये। और क्यों हुआ था वो? क्योंकि जस्ट उसके पहले अमेरिकन राष्ट्रपति ओबामा आए थे और उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई थी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के। तो विज्ञान भवन में वो ऑर्गेनाइज करना जरूरी हो गया था, और मोदी साहब ने बोला कि मेरी सरकार सुनिश्चित करेगी कि हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये फरवरी 2015 की बात है। अब हम 2025 में बैठे हैं। 10 साल में उस बात को पूरा होते मैंने तो नहीं देखा। मसीह विरोधी लोग आकर हम लोगों के साथ में, मैं और मेरी पत्नी के साथ में
उन्होंने काफ़ी हमारे साथ मारपीट किया, यहाँ तक कि मेरे जो दाहिना कान है उससे ब्लड भी आ गया था और काफ़ी चीज़ें मारी। मेरे हाथ में कई उंगलियां हैं जो अभी काम भी नहीं करती हैं और जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। केवल हम ये काम कर रहे थे कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पे एक फैमिली के लिए, लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने, कुछ मसीह जो विरोधी थे, उन लोगों ने हमें पकड़वा के और हमारे ऊपर FIR करा दी, जिसमें हमारा चालान हुआ और मुझे, मेरी पत्नी को, दोनों को ही डासना जेल में डाल दिया गया और मैं और मेरी पत्नी 1 महीना तक जेल के अंदर रहे। बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा, बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। हमारे 3 बच्चे हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ों की पीड़ा का सामना करना पड़ा और एक ऐसा समय हमारे जीवन में आया जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे बच्चे हमसे दूर थे, हमारी फैमिली से दूर थे और मैं और मेरी पत्नी जब जेल में थे तो रविवार के दिन में हमें आधा घंटे के लिए ग्राउंड में मिलने के लिए दिया जाता था। तो मैं और मेरी पत्नी केवल प्रार्थना करते थे और हम एक दूसरे के साथ में रोते थे। मैंने वहाँ पे 7 दिन का उपवास रखा और प्रभु से ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर, हम लोग दोनों जेल में आए हैं, हम तेरे सुसमाचार के कारण आए हैं और हमें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। यदि हमें दोबारा भी आना पड़ा तो प्रभु हम तेरे लिए खड़े रहेंगे। जो भी परमेश्वर ने हमें जेल में रखने में मदद की, हमारी सहायता की, जेल में भी हमारी बहुत प्रताड़नाएं की गई। वहाँ पे कुछ कट्टरपंथी लोग थे जिन्होंने हमारे साथ वहाँ भी मारपीट की, यहाँ तक उन्होंने बहुत मारा मुझे वहाँ पे। और बहुत ही एक ऐसा समय था, 2023 जुलाई का समय था, बहुत विरोध चल रहा था उस समय और वहाँ पे मुझको एक साइड में एक मंदिर था, वहाँ पे उसके पीछे ले जाके उन लोगों ने, 8-7 लोग थे, उनको मालूम चल गया था, उनका मुझ पे जो ब्लेम था ये था कि मैं लोगों का धर्म परिवर्तन करता हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, उनके लिए दुआएं करते हैं, देश के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। लेकिन उन लोगों को मालूम चला कि ये पादरी है और यहाँ पे आकर इस तरीके से काम किया है तो इसे क्या करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। सीमा मुझको मिली, मेरी पत्नी, जब तो मैंने उसको बताया कि सीमा, कल मुझे बहुत मारा उन लोगों ने और मुझे बहुत दर्द है, क्योंकि मैं 7 दिन की फास्टिंग में था तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, जिसके कारण परमेश्वर ने, लेकिन मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि ये 2.5 साल जो मेरे बीते हैं, मेरी पत्नी और मेरे साथ में बीते हैं, बहुत ही दुख भरे थे और मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जो हमारे भारत देश के लिए सभी लोग प्रार्थनाएं करते हैं। और हम पास्टर लोग जो इस समय जेल में हैं या दुख में हैं, परेशानी और भूख में हैं, लेकिन आप सबकी प्रार्थनाओं के कारण आज हम मसीह समाज के बीच में आकर अपनी गवाही देने का प्रभु ने मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूं सबका। जय मसीह की। ऐसा है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश, केवल इसी प्रदेश में 400 से अधिक पादरी लोग हैं जो जेल में हैं बिना बेल के, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई है और उनके ऊपर भी यही गलत एक्यूजेशन कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। 400 और मेरे भाई की तरह और मेरी बहन की तरह है। वाकई में कई चीज़ों की हद होती है और कई चीज़ों की सीमा होती है, लेकिन अभी हम भाई गोविंदर की सीमा से 2 मिनट बात कर लें। बहन, थोड़ा आप बताइए, आपके साथ क्या गुजरा जब आपको प्रार्थना करते हुए लोग आके पकड़ के ले गए और आपको जेल में डाला गया? सभी को जय मसीह की। और 2023 की बात है, जुलाई महीने की 22 तारीख थी उसमें, और हम मोदी नगर में गए थे प्रार्थना के लिए और वहाँ पे हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, पास्टर जी वचन प्रचार कर रहे थे और उस समय में कुछ दबंग लोग वहाँ पे आए और उन लोगों ने हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार किया और बहुत ज़्यादा पास्टर जी से मारपीट की और 3 दिन इन्हें थाने में रखा गया और उसके बाद में चालान कर दिया गया। गवाही काफ़ी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगी। और उसके बाद में 3 दिन के बाद में मेरा भी उन्होंने चालान कर दिया, मुझे घर से उठा के ले गई पुलिस। और जेल में जो बर्ताव होता है बहुत ही गलत तरीके से, वहाँ के जो कैदी आपस में बर्ताव करते हैं, उनका व्यवहार मैंने कभी जिंदगी में अपने ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। और मुझे बड़ा दुख था इस बात का कि प्रभु, मैं ऐसे माहौल में कभी नहीं आई और प्रभु के काम की वजह से आज मुझे ऐसी गंदगी में आना पड़ा और ऐसे गंदे माहौल में आना पड़ा।
और उसके बाद में बहुत ही वहाँ पे खाना पीना भी उतना अच्छा नहीं था और व्यवहार भी लोगों का मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं था। और उसके बाद में हमें कुछ 1 महीने के बाद में जेल से हमें रिहाई मिली, बेल मिली। और उसके बाद में हम घर पे आए तो घर में हम जैसे घर पे आए हमारा पुलिस वालों ने सब कुछ फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। और सबसे ज़्यादा जेल में मैं रो रो के प्रभु से प्रार्थना करती थी। और सबसे ज़्यादा मुझे जो याद सताती थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मेरे बच्चे मेरे से हमसे दोनों से कभी अलग नहीं हुए। और आज मुझे 1 महीना हुआ और मैं अपने बच्चों से अलग हूँ और बच्चे कभी मेरे बच्चे मेरे बिगड़ हमारे बिगड़ खाना नहीं खाते थे और सोते नहीं थे। लेकिन प्रभु आज मुझे सबसे ज़्यादा मुझे याद सताती थी, मेरे बच्चों की याद सताती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, इतने समझदार नहीं थे। और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि या हमें तेरे नाम की वजह से प्रभु प्रार्थना करना या प्रचार करना। परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे नाम के लिए दुख उठाता है, काउंट इट ऑल जॉय। बिल्कुल सही, परमेश्वर ने कहा है कि हमारी विचारधारा वो बदलना चाहता है। मुझे आप बताइए, आपके साथ 2023 में यह घटना घटी, आज की तारीख में आपके दिल में कोई गुस्सा, कोई शिकायत, कोई ऐसी चीज जो आप सरकार को बताना चाहते हैं, किसी चीज से आपके अंदर बहुत ही गुस्सा हो? महेंद्र भाई पहले आप बताइए। मैं तो सरकार से ये अपील करूंगा कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम केवल अपने भारत देश वासियों के लिए, यहाँ तक कि अपनी सरकार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे। और हम चाहते हैं कि जैसे दुनिया के लोग आनंद के साथ में अपनी सेवा, अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, हमें भी प्रार्थना करने के लिए प्रताड़ित ना किया जाए। किसी को भी झूठे केसों में, परमेश्वर के लोगों को झूठे केसों में जेल में ना डाला जाए, ताकि हम भी शांति से, हमें भी जीने का हक है, हमें भी शांति से रहने का हक है। हम सब लोग यहाँ पे बड़े दुख के साथ हैं, लेकिन मेरा किसी से शिकायत नहीं है हम लोगों का। हम इस बात के लिए बड़े आनंदित हैं कि परमेश्वर हम सबके साथ है। थैंक यू भाई। बहन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। आप दोनों आए, आपने वचन हमारे साथ बांटा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जी, मेरा नाम इनामुर रहमान है। मैं जमात इस्लामी हिंद का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से एक नेशनल कन्वेंशन था जो कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में रखा गया था, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी की बात करता है। उसी का मैसेज को देने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा था और उसी के लिए हम भी यहाँ आए थे। और हम भी ये चाहते हैं कि सारे हमारे देश में एक अमन हो, भाईचारा हो, हम सब मिलकर रहें। जो कुछ भी जिसकी राइट्स हैं वो सारे राइट्स मिलें, जो जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी भी अपनी अंजाम दे। हम सब मिलकर इस नेशन बिल्डिंग में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें और एक भाईचारा, और सचमुच में भाईचारा जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की बात करते हैं, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता की जो बात करते हैं, वो ट्रू सेंस में हमें चलता फिरता रोड पर नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ये बात दस्तूर में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। आपको मालूम है कि हमारे संविधान निर्माता जनाब भीमराव अंबेडकर साहब ने ये बात कही थी कि मैं एक बहुत अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये तभी अच्छा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे हों। अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत और इरादा अच्छा नहीं होगा तो फिर ये सबसे बुरा दस्तूर होगा। और अगर एक बुरा दस्तूर, बुरा आइन, बुरा कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत और इरादा अच्छा हो तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रू मानों में वाकई बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप उसकी लेटर और स्पिरिट को देखें, लेकिन वो हमें ग्राउंड पे जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, जिसका अफसोस है। लेकिन इसमें हमने हुकूमत से भी अपील की है कि वो इंश्योर करें रूल ऑफ लॉ को, और अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी, ईसाई कम्युनिटी के लोगों को भी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोगों से भी कहा है कि वो हम सब मिलकर अपने राइट्स के लिए भी लड़ें और नेशन में खुशहाली और उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। खुद आप मीडिया वाले हैं, रात दिन देखते हैं कहाँ लिंचिंग हो रही है, कहाँ लातें मारी जा रही हैं, वो सब कुछ है। अब कोई जगज़ाहिर है, कोई छुपा हुआ तो है नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है। आज अभी आप गूगल पे कर दीजिए, एक कमांड दीजिए कि कितने राइट्स हो चुके हैं, कितने वायलेंस हो चुके हैं, कितनी लिंचिंग हो चुकी है, कितने लोग कोर्ट में, सब कुछ है।
ओपन स्पेस में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। एंटी कन्वर्जन लॉ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को ये इस तरीके से यूज करा जा रहा है माइनॉरिटीज? नहीं, देखिए, हम किसी एक कम्युनिटी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि हर मज़हब के लिए आज़ादी है। तो जब आज़ादी है मुझे अपनी मज़हब के पर अमल करने की, उसको इख्तियार करने की, उसको अपनाने की और उसको प्रोपेगेट करने की, तो दो बातें कंट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको आज़ादी है, दूसरी तरफ कि आप कहेंगे कि नहीं हम अमल नहीं करने देंगे, तो दो अलग अलग बातें हैं। हम चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, मुद्दे की बात रखी, और सरकार को मेमोरेंडम देने वाले हैं कि वो उनकी बात सुने और जो उनकी समस्याएं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं।